اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور انبیاء کرام کو مختلف کتب و صحیفے عطا کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید عطا کیا۔ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جہاں واضح احکامات نازل کیے، وہیں انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماضی کے قصوں کے ذریعے بھی ان کی تذکیر کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ان قصوں میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ اب جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے اس میں بہت سامان ہے، اور اگر کوئی قرآنی قصوں کو محض ماضی کے قصے کہانیاں سمجھ کر سنتا ہے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے قصص القرآن کو محض قصے کہانیاں سمجھ کر پڑھنے اور سننے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کے ذریعے انسانوں کو کس بات کی ہدایت دی ہے۔ قرآنی قصوں میں ایک قصہ اصحاب کہف کا بھی ہے، اور یہ قصہ سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے میں بھی دیکھا جائے تو نہ صرف ایمان والوں کے لیے بلکہ ہر ذی شعور اور باضمیر فرد کے لیے ہدایت موجود ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ مختصراً بیان کروں گا اور یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے اور اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ قصہ سنانے سے قبل یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیوں کیا ہے، آخر یہ سورت نازل کرنے کی وجہ کیوں پیش آئی۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ قریشی مکہ نے اپنے 2 آدمیوں کو مدینہ یہودیوں کے پاس بھیجا کہ یہودی اہل کتاب ہیں، اس لیے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دریافت کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں افراد مدینہ کے یہودی علماء سے ملے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور اوصاف اور تعلیمات بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کے رائے معلوم کی۔ اس کے جواب میں یہودیوں نے ان کو بتایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوالات کرنا۔ پہلا سوال کہ اگلے زمانے کے ان نوجوانوں کا قصہ بتاؤ۔ نمبر 2 اس شخص کے بارے میں معلوم کرو جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا تھا۔ جبکہ تیسرا سوال روح کی حمایت کے متعلق تھا۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق تھا، اور سورت کے مطالعے سے بھی یہی بات دریافت ہوتی ہے۔ یہودی نے قریش مکہ کے نمائندوں کو یہ بھی کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو صرف اللہ کا ایک نبی ہی بتا سکتا ہے، اگر وہ سچے ہوں گے تو ان سوالات کے جواب دیں گے۔ قریش مکہ نے واپس آ کر یہی سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی۔ اصحاب کہف کا واقعہ کیسر دقیانوس بادشاہ کے دور میں پیش آیا، جس نے سن 229 عیسوی سے لے کر 251 عیسوی تک روم پر بادشاہت کی تھی۔ کیسر دقیانوس ایک بت پرست اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اس کے دور حکومت میں چند صاحب ایمان اور روشن ضمیر نوجوان تھے، اور وہ ایک دن اپنے باپ داداؤں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہر کے ایک میلے میں گئے تھے۔ وہ شہر اس وقت شرک و بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، اور وہاں ڈائنا نامی دیوتا کا منتر تھا جس کی پوجا کرنے کے لیے شام، مصر، فلسطین وغیرہ سے بھی لوگ آتے تھے۔ ان نوجوانوں نے وہاں شرک اور بت پرستی کے جو نظارے دیکھے تو ان کا دل کھٹا ہو گیا، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو ایک اللہ کی ہونی چاہیے، قربانی وغیرہ تو ایک اللہ کے نام پر ہونی چاہیے۔ بس یہ سوچ کر یہ لوگ انفرادی طور پر اس میلے سے الگ ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔
पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह ये लोग एक जगह जमा हो गए। अगरचे इन लोगों में कोई तारफ ना था, लेकिन ईमान की रोशनी के बायस ये लोग एक जगह मिल गए। और इब्तिदा में तो ये सारे एक दूसरे से डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि मैं इनके सामने अपने दिल की बात रखूं और वो किसी को बता दे। बिलाखिर उनमें से एक ने कहा कि दोस्तों, कोई तो बात है कि हम इस सारे मेले ठेले और फजलियात को छोड़कर यहां आकर बैठ गए हैं। मेरा ख्याल यह है कि हर एक अपने दिल की बात बताए कि किस चीज के बायस उसने बाप दादा और कौम के इस मेले और रिवाज को छोड़कर यहां आने में आफियत समझी। उसके जवाब में एक ने कहा कि मुझे तो अपनी कौम की यह रस्म बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब हमारा तुम्हारा खालिक एक अल्लाह है तो हम उसको छोड़कर उन दूसरे माबूदों की पूजा क्यों करें। दूसरे ने कहा, यही बात मुझे भी यहां लेकर आई है। फिर तीसरे ने इसकी तायद की और फिर चौथे ने। उस तरह उन लोगों ने अपनी दिल की बात एक दूसरे से कह दी। चूंकि ये सब लोग मजहबी, नजरियाती और रूहानी तौर पर एक थे, इसलिए फितरती तौर पर उनमें एक ताल्लुक कायम हो गया और एक मोहब्बत पैदा हो गई। अब उन नौजवानों ने एक जगह मुकर्रर कर ली और वहां जाकर ये लोग एक दूसरे से मिलते और एक अल्लाह की इबादत करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इनके बारे में पता चलता गया और फिर एक दिन लोगों ने इनको पकड़ लिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया और शिकायत की कि इन लोगों ने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और गुमराह हो गए हैं। बादशाह ने जब इनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने बड़ी दिलेरी और साफ गोई से अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया और कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीनों का मालिक और खालिक है। यह नामुमकिन है कि हम उसके सिवा किसी को अपना माबूद बनाएं। हमसे यह ना हो सकेगा कि इसके सिवा किसी और को पुकारें। यह नहायत बातिल चीज है, हम इस काम को कभी नहीं करेंगे। यह नहायत बेजा बात और झूठी राह है। इसके साथ साथ उन्होंने बादशाह और तमाम अहले दरबार और शहर वालों को ईमान की दावत दे डाली। उनकी इस साफ गोई और दिलेरी से बादशाह बहुत गजबनाक हुआ और कहा कि अगर ये बात ना आए तो मैं इन्हें सख्त सजा दूंगा। उन्होंने जब ये महसूस कर लिया कि हम यहां रहकर अपने दीन पर कायम नहीं रह सकते, तो फिर उन्होंने अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को छोड़ने का फैसला कर लिया। और एक रोज ये लोग मौका पाकर उस बस्ती से भाग निकले और पहाड़ के गार में छुप गए। फिर एक खास मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने उनको 300 या 309 साल बाद दोबारा बेदार किया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि वो कितनी देर तक सोते रहे हैं। बेदार होने के बाद उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि हम कितनी देर तक सोए होंगे। उनका ख्याल था कि एक दिन या इससे भी कुछ कम। बहरहाल अब इनको भूख महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने बाजार से कुछ खाने पीने का सामान मंगवाने का इरादा किया। उनके पास कुछ दरहम थे। उन्होंने वो दरहम अपने एक होशियार साथी को देते हुए कहा कि वो जाकर बाजार से कुछ खाने पीने के लिए ले आए, लेकिन इसके साथ साथ ये नसीहत भी की कि देखो, जरा एहतियात से जाना, ऐसा ना हो कि बादशाह के लोग तुम्हें देख लें और हम लोग दोबारा पकड़े जाएं और वो हमको जबरदस्ती अपने दीन में दाखिल कर दें। वो नौजवान जब सिक्के लेकर बस्ती में दाखिल हुआ तो उसे सब कुछ बदला बदला महसूस हुआ। घर बार अगरचे वैसे ही थे, लेकिन शहर का नक्शा बदला हुआ था। कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या माजरा है। उस नौजवान ने समझा कि शायद मेरी ही तबीयत ठीक नहीं है और मुझे जल्द अज जल्द सौदा लेकर इस शहर से निकल जाना चाहिए। एक दुकान पर जाकर जब इसने सौदा लिया, वो सिक्के दिए तो दुकानदार ने सिक्के देखकर उससे पूछा कि ये सिक्के तुमने कहां से लाए हैं। उसने कहा कि ये मेरे अपने हैं। कदीम सिक्के देखकर दुकानदार हैरान रह गया। वो समझा कि शायद इसके पास कोई पोशीदा खजाना है। उस दुकानदार और बेशतर लोगों ने उस नौजवान को पकड़ लिया और कहा कि साफ साफ बताओ, जो खजाना तुमको मिला है वो कहां है। उस नौजवान ने जवाब दिया कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला, ये मेरे अपने सिक्के हैं और कल शाम को मैं यहां से गया था। नौजवान ने कहा, यहां का बादशाह दकियानूस है ना। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हंसने लगे और नौजवान को पागल समझने लगे। लोगों ने कहा, अरे पागल, दकियानूस को तो मरे हुए 300 से ज्यादा साल गुजर चुके हैं। बिलाखिर उसको बादशाह के सामने पेश किया गया
मुफस्सिरीन और मौरखीन के मुताबिक उस बादशाह का नाम तंदूस था और ये एक मुसलमान बादशाह था। उस नौजवान ने अपना सारा किस्सा उसको कह सुनाया। बादशाह और दरबारियों ने इंतहाई हैरत का मुजाहिरा किया और फिर उनको पता चला कि ये तो वही नौजवान हैं जिनके बारे में हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि वो अपना ईमान बचाने के लिए कहीं रोपोश हो गए थे। आनन फानन ये खबर सारे शहर में फैल गई कि दकियानूस के दौर में जो नौजवान रोपोश हो गए थे वो अब जाहिर हो गए हैं। बादशाह ने इस नौजवान से कहा कि मुझे अपने साथियों के पास ले जाओ। वो नौजवान बादशाह को वहां ले गया, जबकि बादशाह के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी उन नौजवानों को देखने के लिए साथ चल पड़ा। गार के पास पहुंचकर उस नौजवान ने अपने साथियों को सारा किस्सा बताया और जब उन नौजवानों को यह मालूम हो गया कि वो इतने तवील अरसे तक सोते रहे हैं तो उन्होंने अपने दीनी भाइयों को सलाम किया और दोबारा लेट गए। उनकी रूह जिस्ते खाकी से परवाज कर गई। अब लोगों में दो ग्रोह बन गए। एक कहता था कि इस गार का मुंह बंद कर दो और इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, अल्लाह ही इनका मामला बेहतर जानता है। जबकि जो लोग इस कौम के मामलात में गालिब थे उन्होंने कहा कि हम तो इनके कब्र पर एक मस्जिद इबादतगाह बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहां इन नौजवानों का किस्सा खत्म हो जाता है जिसको असहाबे कहफ का किस्सा कहा जाता है। असहाबे कहफ के किस्से से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में आजमाइश आए तो इसमें साबित कदमी दिखानी चाहिए। अल्लाह की राह में अगर घर बार, माँ बाप, औलाद, दोस्त, रिश्तेदार, अजीजों का रब छोड़ना पड़े तो इससे दरेग नहीं करना चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी आजमाइशें आए हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर मौजूद बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आपको पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निगहबान। वस्सलाम।